Hello students, today's topic is accounting process, and you know that our subject is accountancy, and accountancy is concerned with maintaining a track record of all the transactions which are made during the accounting period or financial year, and it is also concerned with presenting the final reports and statements which reflect financial position of the business and the exact amount of profit or loss which are made by the business during a financial year. So students, accountancy has two stages, and these two stages have different steps that make a complete accounting process. And these two stages are bookkeeping and accounting. The stage of bookkeeping and the stage of accounting comprises with the total process of accounting, and the subject is accountancy. So students, accountancy आपका सब्जेक्ट है और इसमें कि दो सेगमेंट शामिल हैं, बुककीपिंग और अकाउंटिंग। बुककीपिंग का मतलब है सारा ट्रैक रिकॉर्ड रखना इन प्रॉपर बुक्स, और अकाउंटिंग का मतलब है हिसाब देना। It means bookkeeping is concerned with maintaining the total record in the proper books in scientific manner, in systematic manner, whereas accountancy is concerned with reporting the financial statements and giving the financial information to the different users. तो अकाउंटिंग का मतलब है हिसाब देना, बुककीपिंग का मतलब है हिसाब रखना, और दोनों स्टेज को मिला के क्या बनता है सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी। और दोनों स्टेजेस में जो है हमारी बहुत सारी स्टेप्स हैं जिसको मिला के क्या बनता है अकाउंटिंग प्रोसेस। इट मीन्स अकाउंटेंसी हैज टू सेगमेंट्स और स्टेजेस, बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग, एंड बुककीपिंग हैज डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, whereas accounting also has some steps to be conducted. So students, in accounting process we have to follow different steps one by one. There are 10 steps in bookkeeping, whereas 4 steps involved in accounting. And you know that all the steps are concerned with accounting process. Step 1 to 10 is bookkeeping, and step 11 to 14 is concerned with accounting. तो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी की जो कंप्लीट प्रोसेस है उसमें हम डिफरेंट स्टेप्स को पूरा कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। और ये जो स्टेप्स हैं वो बेसिकली टॉपिक्स भी हैं और इनमें चैप्टर्स भी आएंगे। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट की तरह है कि हम स्टेप बाय स्टेप अकाउंट्स में क्या करेंगे, अपने अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे और किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे। So I start accounting process as an introduction for the topic as well as the total subject of accountancy. Students, first of all, you know that we have to identify a business transaction or economic activity for which accounts are to be maintained and record is to be taken into proper books. So first step is identification of business event और ट्रांजेक्शन। इट मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये पहचानना है कि बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है मीन्स वी हैव मेड अ पर्टिकुलर डीलिंग विद समवन विद और पर्सनल बिजनेस और एनी एंटरप्राइज। तो पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंड इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। तो हमें पहचानना है कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो उसको हम वहीं पर छोड़ देंगे और हम स्टेप को नहीं लेंगे। अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है, उसके बाद हमें स्टेप 2 पर जाना है। स्टेप 2 इन्वॉल्व्स क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर ट्रीटमेंट एज लायबिलिटी, एसेट्स, इनकम और एक्सपेंसेस एटसेट्रा। जब हमने ट्रांजेक्शन पहचान लिया कि ट्रांजेक्शन हुआ है, तब उसमें अकाउंट्स को पहचानेंगे या उस चीज को पहचानेंगे, उस हेडिंग को पहचानेंगे कि वो किससे संबंधित है।
वो एसेट से संबंधित है, लायबिलिटी से संबंधित है, कोई खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, या कोई इनकम या प्रॉफिट की बात हो रही है. Students, after step 2 we have to go for step 3. Step 3 includes the measurement of transaction in monetary terms. In India it is measured in rupees, and preparation of source documents like receipts, pay and slip, voucher, etc. तो स्टूडेंट्स, स्टेप 3 में हमें क्या करना है? हमें जो ट्रांजेक्शन हुआ है, वी हैव टू मेजर दैट ट्रांजेक्शन इन द मॉनेटरी वैल्यू. उसकी मॉनेटरी वैल्यू रुपीज में कितनी है? रुपीज में मेजर करने के बाद हमें क्या करना है? रिकॉर्ड जो हम करेंगे वो हम किसी एविडेंस के आधार पे करेंगे. एविडेंस हम या तो हासिल करेंगे या हम वाउचर बनाकर किसी के साइन करवाएंगे जो एविडेंस बन जाएगा. तो इन स्टेप 3 इट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन in monetary value or monetary terms, that is rupees in India, and preparation of source document on the basis of which we can record the transaction in our proper books. These documents may be like a file, paper, stamp paper, receipts, pay slip, voucher, etc. Now we go towards step 4. Step 4 means recording the transaction in primary books, which are known as journal or daily record book. In step 4 we have to record the transaction in our primary books or first record book or basic record book, which are known as journal. These are daily record book, that's why they are known as journal or daily record book or first book or primary book. Now we go towards step 5. Division of journal in subsidiary books like sales book, purchase book, etc. If business has innumerable transactions every day or daily. तो स्टूडेंट्स, अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो हम एक ही जर्नल को मेंटेन कर सकते हैं. अदरवाइज वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन डिफरेंट सब्सिडियरी बुक्स. तो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन पर डे हो रहे हैं. ज़्यादा लार्ज बिजनेस है, कई ब्रांचेस हैं, कई डिपार्टमेंट्स हैं, तो हमें जर्नल को डिवाइड करना पड़ेगा कई प्रकार की बुक्स में, जिन्हें हम क्या कहेंगे? सब्सिडियरी बुक्स कहेंगे. तो स्टेप 5 में क्या होगा? डिवीजन ऑफ जर्नल. जो स्टेप 4 में हमने जर्नल बनाया था और बिजनेस हमारा बड़ा है तो उस जर्नल को हम डिवाइड कर लेंगे कई बुक्स में. तो डिवीजन ऑफ जर्नल इन सब्सिडियरी बुक्स. सब्सिडियरी मीन्स हेल्पिंग बुक्स और सपोर्टिव बुक्स like sales book, purchase book, etc. You know that if business has innumerable transactions daily, then we have to divide journal into different subsidiary books. Otherwise, not. Now, step 6. Step 6 involves posting to ledger accounts from journal or subsidiary books. After preparing subsidiary books or journal, we have to post the transaction into different types of ledgers and ledger accounts. Ledger is the classification of different similar type of transactions in a particular format, which is known as account. So we have to post the transaction into the ledger accounts from journal or subsidiary books. Now step 7. In step 7 we have to find out balances of ledger accounts, generally at the end of accounting period or when required. In step 7 we have to find out the balances of every account which has been made or maintained in the business enterprise in the financial year. This may be a negative balance or positive balance. It means a debit balance or credit balance, and we will talk about it further or later. So step 7 involves finding balances of ledger accounts generally at the end of accounting period. Now step 8. Step 8 means preparation of unadjusted trial balance to check the arithmetical accuracy of accounts maintained by the business enterprise. So in step 8 we have to prepare an accounting tool which is known as
trial balance, and this trial balance is prepared for maintaining a check over the balances of accounts. It means we are going to check the mathematical accuracy of accounts maintained by the business in a financial year. If there is some mistake or omission, we have to correct it, and we have to further make an adjusted trial balance later. So step 8 involves preparation of unadjusted trial balance to check the arithmetical accuracy of accounts maintained. Now step 9 of accounting process, which is concerned with bookkeeping. Step 9 involves adjustment entries regarding any correction, omission, adjustment for any advance or unpaid amount. स्टेप 9 में हमें क्या करना है? अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है या कोई चीज छूट गई है या कोई करेक्शन करना है हमें या कोई एडजस्टमेंट करना है अनपेड अमाउंट के लिए या एडवांस अमाउंट के लिए, तो हम इस स्टेप पर वो एंट्री कर लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे, कोई चीज छूटी है उसको इन्वॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली अपने अकाउंट्स में। उसके बाद हम फिर से एक बार ट्रायल बैलेंस बनाएंगे चेक करने के लिए और हम स्टेप 8 पर जाएंगे। तो स्टेप 10 पे जाएंगे। स्टेप 10 मीन्स प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। स्टेप 9 के बाद स्टेप 10 फिर से हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस कैसा है? फाइनलाइज्ड है। तो प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जब हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज कर ली तो ट्रायल बैलेंस क्या हो गया? एडजस्टेड हो गया, क्योंकि हमने करेक्शन कर लिए, कोई चीज छूट गई तो उसको इंक्लूड कर लिया। So at step 10 we have to prepare adjusted trial balance और finalize trial balance if required। अगर जरूरत पड़ेगी तभी ऐसा करेंगे, अदरवाइज हमारा प्रोसेस जो है स्टेप 9 पर ही बुककीपिंग का क्लोज हो जाएगा। So students, from step 1 to 10 are the part of bookkeeping segment of accounting process, and now we are moving towards अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मीन्स हिसाब देना, बुककीपिंग मीन्स हिसाब रखना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने हिसाब रखा, अब हिसाब देने जा रहे हैं, रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं और रिपोर्ट्स के जो रिजल्ट्स हैं उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं डिफरेंट यूजर्स को, और यूजर्स हो सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेप 11। स्टेप 11 इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ समराइज्ड स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो साल के लास्ट में या फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में या हमारी जब जरूरत है तब जब हम स्टेटमेंट्स बना रहे हैं समरी के रूप में, वो क्या करा रहे हैं? समराइज स्टेटमेंट्स चला रहे हैं, जिनको हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। इनमें क्या आता है? लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय कंपनीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपनीज only. Now step 12, analysis of financial statements. Analysis means विश्लेषण करना. We have to find out different positive and negative sides of statements and business, and this process is known as analysis of financial statements. जो हमने financial summaries बनाई हैं, financial statements बनाए हैं, summarized statements बनाए हैं, final accounts बनाए हैं, trade account, profit and loss account, balance sheet और cash flow statement बनाया है, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एनालाइज कर रहे हैं। नाउ स्टेप 13, इंटरप्रेटिंग द बिजनेस इंफॉर्मेशन, बिजनेस स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल्स, प्रॉफिट, सॉल्वेंसी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस इन टर्म्स ऑफ रेशियोज, परसेंटेज एटसेट्रा। At step 13 we have to interpret or we have to explain different business information in terms of any percentage, in terms of any ratio, in terms of any times. It means हम क्या कर रहे हैं स्टेप 13 पर, जो हमने स्टेटमेंट्स बनाए हैं उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको उनकी गहराई में जाके उनको एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि कोई परसेंटेज निकाल रहे हैं फर्दर डिसीजन मेकिंग के लिए या फिर कोई फर्दर कैलकुलेशन के लिए। तो स्टेप 13 में क्या आ रहा है? इंटरप्रेटिंग द बिजनेस इंफॉर्मेशन। जो बिजनेस से संबंधित जानकारी है जो हमने स्टेटमेंट्स में प्रोवाइड करी है, वो किससे संबंधित है? कोई सेल्स के बारे में हम बता सकते हैं, प्रॉफिट के बारे में बता सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में बता सकते हैं,
फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में बता सकते हैं, जो कि हम प्रेजेंट कर सकते हैं किसी परसेंटेज में या फिर किसी रेशियो में या किसी और तरीके से कैलकुलेशन करके। नाउ द लास्ट स्टेज और स्टेप 14। स्टूडेंट्स, यहां तक हमने 1 to 10 हिसाब रखा, यह हमने एनालाइज किया और रिपोर्टिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो हिसाब देने की प्रोसेस किस में चल रही है? अकाउंटिंग में चल रही है। अकाउंटिंग की लास्ट स्टेप कौन सी आई? 14। In step 14 we have to communicate different business information to different users of financial information which is maintained by the business enterprise. Step 14 includes communication, and this communication is of two types: internal communication and external communication. Internal communication means we are explaining the information to internal users like management, office staff, employees, etc. तो स्टेप 14 में 2 स्टेप आ रही हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने इंटरनल यूजर्स को। इंटरनल यूजर्स मीन्स आंतरिक उपयोगकर्ता, किसके? बिजनेस के, इंफॉर्मेशन के। तो जो एम्प्लॉयज हैं, मैनेजमेंट स्टाफ है, ऑफिस का स्टाफ है, डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन सबको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन। अगर हम ये इंफॉर्मेशन बाहर वालों को बता रहे हैं, वो क्या कहला रहा है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहला रहा है। सो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन और शेयरिंग द इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट एक्सटर्नल यूजर्स which are connected with the business. They may be bankers, tax authorities, Stock Exchange Board of India, SEBI, and investors. So students, now it is clear that accounting process includes 14 steps. First 10 steps are connected with bookkeeping, whereas 4 steps are connected with accounting. Bookkeeping means to maintain the record, and accounting means to present the record with proper summarized statements, with finalized reports and summarized statements, and also to communicate the information to different users. तो स्टूडेंट्स, ये अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे धीरे धीरे और चैप्टर्स भी आएंगे। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का, अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग प्रोसेस का, बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।